Hello and Assalamu alaikum, healthcare professional, in the virtual webinar series of drug and air antidotes. I am Akshay pharmacist Mariam. My name is Mariam Sehrish. Today we'll be studying about the antidotes list of drugs. What are the common antidotes and their availability, their major brands, and their dosage form. And then we'll be studying about the antidote administration and their dosage. What would be the dose of the antidote? किस पॉइजनिंग की स्टेज में हमें कितनी एंटीडोज जो है वो यूज करनी है. देन वी विल स्टडिंग अबाउट द एंटीडोट फॉर द पॉइजनिंग्स. जितनी भी पॉइजनिंग के टाइप्स हैं, अदर फिजिकल, केमिकल, ड्यू टू एनी बायोलॉजिकल एजेंट, ड्यू टू एनी केमिकल एजेंट और एनी ड्रग, उनकी क्या क्या जो है वो एंटीडोट्स हैं. Common drugs and in their antidote, and we'll be studying about the drug toxicities. So this is a 2 day long virtual webinar on the Saturday and Sunday, 4 to 5 March, inshallah, आज और कल 8 p.m. So for certificate would be also provided to the participant, but before that you have to answer the questions that are pinned in the chat box of this video, and you have to answer that questions in the chat box, not in the live chat. So without any delay, चलें आज का webinar जो है वो start करते हैं on the drugs and their antidotes. But before starting this lecture, I would thank you guys to help us achieving the milestone of 1200 subscribers and huge watch time. Thanks for appreciating and supporting me, and thanks for motivating us to work for the well-being of healthcare professionals and especially pharmacist community in the Pakistan and the worldwide. But once again, welcome to Pharmacist Pakistan Pharmacist Virtual Webinar Series and Ambassadorship Program to excel and motivate students to become legally qualified and highly competent pharmacists to work best in the healthcare field and healthcare system of the Pakistan and the worldwide. So support us because we didn't uh, charge you for the services, and because we do a lot of research and we paid a lot of efforts to bring this such kind of webinars for you guys, and but we don't charge anything for you, and it's totally free. That is very rare, and the only thing we want in return from you is to kindly support me and subscribe to my channel and comment in the comment section and share this video and share this lecture and this knowledge as much as you can in your healthcare professionals, like nurses, doctors, pharmacists, and any healthcare professional. And thanks for giving us a sense of appreciation by helping me to achieve the milestone of 1200 subscribers in a very short period of time. Thanks for loving and supporting us. And you can also follow me on the Facebook, Instagram, and you can also subscribe to my channel, Ask Your Pharmacist here. And we have a huge community of about 4,000 plus global pharmacists in our pharmacist community group. In this group, we share the recent pharmacy related and news and updates. You can also join the group. The link is in the comment section, and we also provide uh, customized and paid courses to our customer who are facing any difficulties in their studies and exams. We also have paid courses that are customized according to the personal needs of the healthcare professionals. So चलें without any delay आज का lecture start करते हैं on the drugs and their antidotes and their major toxicities. So क्या क्या antidotes use होते हैं, poisoning क्या होती है, toxicities क्या होते हैं, चलिए start करते हैं. So antidotes क्या होते हैं? According to the WHO World Health Organization, antidote की definition ये है कि antidote were defined as the therapeutic substance used to counteract the toxic action of any specified xenobiotic. Xenobiotic is any foreign substance in the body that is not produced inside our body, but it now inside our body, and it's giving its effect. It can be toxic and it can be biological therapeutic effect. So xenobiotic कोई भी substance है वो हमारी body के अंदर आया, उसने कोई भी toxicity and poisoning हमारी body में cause की, and that toxicity and that poisoning is now lively threatening, and that is poison for us now. So antidotes were any therapeutic substance that is used to counteract the toxic action of any substance. It can be any chemical, it can be any biological agent, it can be any drug, it can be any
medicine, it can be any toxic substance, it can be any poison. So कोई भी substance xenobiotic ये जो होता है वो कोई भी foreign body है that is not produced inside the body but it is giving untoward effect in the body that is life threatening. So antidote जो अगर हम बात करें तो that reduce the overall burden of the healthcare services in managing of the poisoning cases. So जो एंटीडोट्स अगर अवेलेबल हो तो हमें अगर एंटीडोट अवेलेबल नहीं है द पेशेंट इज कमिंग विद सर्टेन काइंड ऑफ द पॉइजनिंग देन वी हैव टू यूज अ लॉट ऑफ द सपोर्टिव मेडिसिन फॉर दैट बट इफ वी हैव एन certain antidote available in the healthcare system at that time that can avoid the burden and the cost of the healthcare services in managing that poisoning condition. Because if we manage that poisons that toxicity at दैट पॉइंट तो इतना पेशेंट के अंदर उसका जो है वो हार्ड इफेक्ट नहीं आएगा जिसको मैनेज करने के लिए हमें मंथ्स और ईयर ऑफ द ट्रीटमेंट देना पड़ेगा पेशेंट को रेदर उसी टाइम जोन में अगर हम पेशेंट को करेक्ट एंटीडोट दे देते हैं टू दैट टॉक्सिसिटी एंड टू दैट पॉइजन दैट कैन अवॉइड दैट ह्यूज बर्डन. सो जब भी कोई पेशेंट किसी भी पॉइजनिंग कंडीशन के साथ या किसी भी टॉक्सिसिटी के साथ आता है तो उसको हम दो तरीकों से ट्रीट करते हैं. दैट वी गिव देम द सपोर्टिव थेरेपी. For example, the certain antidote is not available and we have to give the supportive therapy on the basis of the symptoms and the sign of the toxicity. And we can also give the correct antidote to stop the poisoning and to manage that poisoning condition. तो जो जो भी हम सपोर्टिव थेरेपी और जो भी करेक्ट एंटीडोट देते हैं टू मिटिगेट द पॉइजनिंग एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट ड्रग पॉइजन या फिर जो भी वो थेरेपी xenobiotic है तो दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ द पेशेंट सर्वाइवल अदरवाइज द चांसेस ऑफ द पेशेंट सर्वाइवल विल बी वेरी लो. सो इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि ड्रग एंड मेडिसिन में क्या फर्क है और पॉइजन क्या होता है एडवर्स इफेक्ट इससे कैसे डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग क्या होती है. सो ड्रग इज एनी सब्सटेंस अदर देन द फूड which is has any physiological and therapeutic effect on the body when it's ingested and it is introduced in the body. So drug जो है वो mostly negative connotation में इस्तेमाल किए जाते हैं and because they might have the सेंस के ये मिसयूज भी हो सकते हैं एंड दे हैव द मेजर wrong effects on the untoward effects or the that effect that is not required for the disease. So but they are still intended for the diagnosis, cure, mitigation and treatment and the prevention of the disease, but they have the negative connotation with them. The drugs are for like narcotics, drugs like heroin, marijuana and etc like this. But the medicine is any substance that is used for the treatment and relieving the symptoms of the disease. They have the positive connotation. The medicines have are the legal things and they have the positive connotations attached to them and they refers for the practices in the science and the medicine that can be used for the diagnosis, that can be used for the treatment and the prevention of the disease. So there is a difference between the drug and medicine. I hope it would be clear to you. So all medicines are drug, but not all drugs are the medicines. Medicines are actually derived from the drugs, but drugs are actually not medicines. So that is the basic difference between the medicines. The medicines जो है वो are the for the uses of the treatment of the disease and the drugs are like they have any physiological effect in the body when they are ingested. There can be any non-untoward effect that is not required in the body and that is might be dangerous and that it might not be required in that patient and the medicine have the treating effect in the body. और आगे आते हैं पॉइजन. सो पॉइजन इज अ डिफरेंट टर्म फॉर द मेडिसिन एंड द ड्रग. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बताना चाहिए कि हर जो मेडिसिन है इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ पॉइजन जब वो अपनी थेरेपेटिक रेंज से बढ़ जाती है. सो ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजन एंड देयर इज नन ऑफ that is not a poison. The right dose is a drug, and the drug dose greater than that is a poison, and we have to treat and we have to give remedy. So, poison is any substance which cause any damage and harmful effect on the body. The poison can be any agriculture substance, it can be any industrial chemical, it can be any drug, it can be any healthcare product, it can be any biological poison. So poisons may be intentionally
एंड पॉइजनिंग कैन बी नॉन इंटेंशनल। इंटेंशनल कब होती है? जब पेशेंट जो है वो सुसाइड केस के साथ आता है, पॉइजनिंग के केस के साथ। तो और जो इन नॉन इंटेंशनल है उसमें पेशेंट को या तो पता नहीं है, उसने जो है वो डबल डोजिंग ले ली है, कोई नैरोथेरेपेटिक ड्रग थी, उसने उसकी मेडिसिन ज्यादा ले ली हैं, उसको इसका आइडिया नहीं था, डबल डोजिंग हो गई है पोलीफार्मेसी की वजह से, या वो जो पेशेंट है उसने गलती से कोई ऐसा खाना चीज खा ली है, या उसको कोई किसी और ने पॉइजनिंग कर दिया है, तो दैट्स दी नॉन इंटेंशनल। सो इन बोथ कंडीशंस ये पता करना कि ड्रग कौन सा है जिसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है, पॉइजनिंग का मेजर कोज क्या है, इट्स वेरी हार्ड टू नो। और इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये भी एक जो है वो एक बर्डन और एक क्वेश्चन आता है टू द हेल्थ केयर प्रोफेशन कि कैसे उसने पेशेंट को विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द पॉइजनिंग उसने उस पेशेंट की जो जान है वो बचानी है थ्रू दैट फ्रॉम दैट पॉइजन और इसके इफेक्ट से। सो टॉक्सिसिटी क्योंकि नेचुरल भी हो सकती है और इंटेंशनल भी हो सकती है, तो अगर पेशेंट इंटेंशन पॉइजनिंग के साथ आया है तो उसको बाद में उसको क्या क्या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ये भी उसके ट्रीटमेंट में ही आ जाता है। सो पॉइजनिंग की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो दैट डिपेंड ऑन दी कौन सा पॉइजन वो पेशेंट लेकर आया है, वो पॉइजन कितना पॉइजनस है, यानी पॉइजन की भी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, लेस पॉइजनस एंड मोर पॉइजनस। पॉइजन की नेचर क्या है, वो बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट दे रहा है, और उस पॉइजन की टाइम ऑफ इंजेक्शन या उसका एक्सपोजर टू द बॉडी कितना है, और उस पॉइजन पॉइजन की टॉक्सिसिटी कितनी है, और उसको हमने आगे मैनेज कैसे करना है। तो टॉक्सिकेंट जो है वो एनी सब्सटेंस दैट इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट इज अ टॉक्सिकेंट फॉर अ पॉइजन। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? जरूरी नहीं है कि कोई ड्रग जो है वो एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है तो दैट इज अ पॉइजन, नो। Adverse effect can be any effect that is with the use of the drug with its therapeutic effect. It is any change from the organism normal state dependent upon the concentration of the active substance at the target site of the sufficient period of time. For example, patient जो है वो कोई medicine ले रहा है, for example headache के लिए, उसका headache treat हो गया, but with that treatment of the headache उस patient को allergy हो गई है with that medicine. That is a very mild state of allergy जो कि patient जो है वो किसी और medicine से treat कर सकता है। और फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो वारफरिन ले रहा है, बट विद वारफरिन उसका आईएनआर जो है वो इनबैलेंस हो रहा है, या उसकी जो है वो कोई हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है उसकी बॉडी में, तो दैट इज एडवर्स इफेक्ट दैट इज कमिंग विद द थेरेपेटिक इफेक्ट द बॉडी ऑफ द ड्रग। तो उसको भी मैनेज जो है वो करना है, बट दैट इज नॉट अ पॉइजनिंग। सो अगर हम एंटीडोट की डेफिनेशन देखें, सो एंटीडोट इज अ सब्सटेंस दैट कैन काउंटर एक्ट फॉर द पॉइजन and that can counteract from of poisoning. The term ultimately derived from the Greek word pharmakon mean medicine, and the antidotes mean the anti or the arademy, arademy for the remedy for the poisoning. So antidotes are, for example, any anticoagulant, for the coagulant effect, that is the like a reversal for that poisoning condition. पेशेंट को जो है वो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट आया तो हमने उसको कोगुलेशन दे दिया, पेशेंट को कोएगुलेशन का इफेक्ट आया तो हम उसको कोई एंटीकोगुलेंट दे देंगे, तो दैट इज द इरिवर्सिबल एजेंट, एयर रिवर्सल, that is reversing the effect. So antidote form some particular toxin, for example in the case of the animal poisoning, for example animal poisoning क्या हो सकती है, कोई venom, तो उस पर venom में हम क्या देंगे, उसका एंटी, तो वो एंटी क्या होगा, उसका एंटी venom. In the case of like for example spider bite, snake bite or the venomous animal, for example spiders, scorpions and bees etc, mostly जो arthropods होते हैं उनके अंदर ये जो है ना venom होता है, and we have to use the anti venom. So दैट कैन बी एनी एंटीबॉडी, और जो उस जो भी उस वेनम से जो भी है वो फैक्ट जो है वो कोई एलर्जिक रिएक्शन प्रोवोक हो सकता है, कोई एनाफिलेक्टिक शॉक प्रोवोक हो सकता है, एंड देयर इज अनफॉर्चुनेटली नो सर्टेन एंटीडोट फॉर दी वेनम्स जो कि एनाफिलेक्टिक शॉक करते हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शन इंड्यूस करते हैं। वी हैव टू गिव दी symptomatic treatment to that anaphylactic shock and that allergic reaction. There is no certain antidote एल्स जो कि स्नैक बाइट होती है उनकी जो पॉलीवेलेंट एंटीवेनम है वो अवेलेबल है। मोस्टली एर्थ्रोपोड जो एनिमल सोर्सेज से जो वेनम पॉइजनिंग होती है उसकी मोस्टली एंटीडोट, स्पेसिफिक एंटीडोट जो है वो नहीं अवेलेबल। वी हैव टू ट्रीट देम ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पॉइजनिंग, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन।
in the case of the shock. Treatment of the poisoning में अगर बात करें तो we can give the patient supportive care. सपोर्टिव केयर देंगे, कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को पॉइजनिंग हुई, उसको जो है वो एलर्जी शो हुई, तो हम उसको एंटी एलर्जेंट्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल पेशेंट को पॉइजनिंग हो रही है और उसने कोई जो है वो ड्रग ली है, कोई पॉइजन लिया है, सो उस पॉइजनिंग की, उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हम उसको एक्टिवेटेड चारकोल दे देंगे। एंड फॉर दी ओकेजनल यूज में हम पेशेंट की डायलिसिस भी कर सकते हैं, इफ द poison is in the systemic, in the blood, and if the it is in the gastric or in the GIT, तो उस केस में हम उसकी गैस्ट्रिक एम्पिटिंग कर सकते हैं, उसको एमएसएस इंड्यूस करवा सकते हैं, उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करवा सकते हैं, ताकि जो भी पॉइजन है उसके स्टमक से रिमूव हो जाए। हम उसका गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं यूजिंग दी एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम फ्लूइड उसकी जो है वो स्टमक में लेके जाएंगे, उसका स्टमक वॉश करेंगे। वी कैन डाइल्यूट द पॉइजन इनसाइड द GIT ट्रैक, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सलाइन से या ऑयल से, to avoid the exposure and to avoid the uh, absorption of the poison from the stomach or the GIT tract to the systemic circulation, क्योंकि systemic circulation में जब वो poison चला गया तो that would give huge adverse effects and the huge poisoning condition. फिर हम पेशेंट का एनीमा भी कर सकते हैं, उसका होल बाउल इरिगेशन कर सकते हैं। एंड इफ इन द केस द पॉइजन जो है वो हम इन तमाम तरीकों से गैस्ट्रिक लवाज, एमिसिस या फिर बाउल इरिगेशन से रिमूव नहीं कर सकते, और पेशेंट जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, तो उस केस में हम पेशेंट का सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। और उस पॉइजन का, फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कोई लेड बैटरी इंजेस्ट कर ली है एंड दैट लेड बैटरी जो है वो हम किसी भी गैस्ट्रिक लिवाज से रिमूव नहीं कर सकते, तो उस केस में पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए हम सर्जिकली उस बैटरी को, लेड बैटरी को भी उसकी स्टमक से, उसकी GIT ट्रैक से रिमूव कर सकते हैं। तो एंटीडोट की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, हम अब इसकी डिटेल में इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन भी इसकी जो है वो एक क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन, वो कहाँ पर अपना इफेक्ट दे रही है, उसके बेस पे भी इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। बट उससे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जब भी कोई पेशेंट जो है वो पॉइजनिंग के साथ आता है तो डिफरेंट डूज एंड डोंट्स होते हैं। हमने देखना होता है कि पेशेंट को अभी उसकी जान बचाने के लिए क्या सबसे पहले हमने करना है और क्या हमने आखिर में करना है। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट इज कमिंग विद द पॉइजनिंग ऑफ द वीट टैबलेट्स, तो हम ये नहीं करेंगे कि पहले हम उसकी डाइल्यूशन कर दें या पहले उसकी जो है वो उसको चारकोल दे दें, एक्टिवेटेड चारकोल, बिकॉज वीट पॉइजनिंग में एक्टिवेटेड चारकोल इज टोटली अनइफेक्टिव। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल उसका पहले हम गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे, फिर हम उसकी डाइल्यूशन करेंगे, फिर हम उसकी बॉडी में जो है वो उसका बाउल इरिगेशन करेंगे, देन हम उसको चारकोल देंगे, क्योंकि जो भी कोई लेफ्ट ओवर पॉइजन अभी भी उसके स्टमक में या उसकी GIT ट्रैक में है एंड दैट कैन बी अब्सॉर्ब टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसके लिए हम उसको एक्टिवेटेड चारकोल दे दें टू अवॉइड द फर्दर एब्जॉर्प्शन एंड द एक्सपोजर ऑफ द पॉइजन। तो ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि पेशेंट अगर पॉइजनिंग के साथ आया है तो हमने क्या डूज एंड डोंट्स एंड क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के साथ, पॉइजनिंग कंडीशन के साथ आया है, तो हम एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमने फौरन ये फैसला लेना है कि दैट इज the first line of treatment for the poisoning and that is the second line of the treatment. So we have to start with the first line of the treatment. We for the treatment of the pesticide toxicity and for the snake bite toxicity and etc. पेशेंट को हमने पहले मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक एंटीडोट अवेलेबल है, सबसे पहले वो स्पेसिफिक एंटीडोट दें। फिर हमने पेशेंट को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, फर्स्ट साइड, फर्स्ट ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट, देन हमने पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। पॉइजनिंग हुई है, हमने गैस्ट्रिक लवाज कर लिया, हमने एंटीडोट दे दिया, बट स्टिल कुछ ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर अवेलेबल है और अभी भी वो अपना इफेक्ट दे रही है, उसके लिए हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या करना है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या करना है फॉर द पेशेंट, उसकी पॉइजन अब्जॉर्प्शन मिनिमाइजेशन कैसे करनी है, एलिमिनेशन ऑफ द इनहेंसमेंट ऑफ द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉइजन हमने कैसे मिनिमाइज करनी है, हमने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, हमने पेशेंट का स्पेसिफिक डाइल्यूशन कैसे करनी है उसकी स्टमक में, या पेशेंट को हमने एंटीडोट कैसे देना है, क्या वो एंटीडोट अवेलेबल है, क्या वो हेल्थ केयर सेक्टर में अवेलेबल है एंटीडोट इस टाइम अवेलेबल, या कोई स्पेसिफिक एंटीडोट अवेलेबल है ही नहीं, या हमें एंटीडोट अवेलेबल करवाने के लिए हमें कहीं से मंगवाना पड़ेगा, उसका कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पॉइजनिंग इज अ वेरी फास्ट कंडीशन। तो हमें देखना है कि क्या इतनी जल्दी एंटीडोट अवेलेबल होगा कि पेशेंट की लाइफ जो है वो हम बचा सकते हैं। सो चलो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं
कि क्या क्या हम पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दी पॉइजनिंग. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीडोट अकॉर्डिंग टू दी मोड ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल फिजिकल, chemical, and the physiological and pharmacological treatment. So you have to comment in the comment section कि कौन कौन सी classification है antidotes की. That is physical on the mode of action base पे, physical, chemical antidotes and the physiological and pharmacological antidotes. सबसे पहले हम पढ़ते हैं according to the mode of action. So according to the side of action, तो जो antidotes हैं they are for example in the 7 types. For example जो पहली है वो है that form a non-toxic complex with the poison. For example इसमें जो सबसे आ जाती है important वो है चिलेटर्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन की पॉइजनिंग में हम चिलेटर्स यूज करते हैं. तो आयरन के साथ वो जो चिलेटर्स हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, चिलेट्स बना लेते हैं. और वो फर्दर जो है वो चिलेट्स इतने बिग साइज के होते हैं कि वो सिस्टमिकली अवेलेबल नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती. So that is a non-toxic complex formation process. Second है accelerate the detoxification. उस पॉइजन की हमने डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट कर दी either in the GIT tract or either in the systemic circulation, either giving anything oral or either giving something like through IV. तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस करते हैं एंड एसिटाइलसिस्टीन in the case of the paracetamol poisoning and thiosulfate in the case of the metal poisoning. थर्ड आ जाती है इसकी टाइप द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द पॉइजन इनटू ओनली टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स. कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि जब हम इंजेस्ट करते हैं तब पॉइजनस नहीं होते, बट जब वो इन साइड द बॉडी जाते हैं तो दे स्टार्ट मेटाबोलाइजिंग. और उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर एक्चुअली टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो हम इन साइड द बॉडी उनकी कन्वर्जन ऑफ दी सब्सटेंस टू द टॉक्सिक मेटाबोलाइट भी प्रिवेंट कर सकते हैं इन द केस ऑफ द इथेनॉल एंड इन द केस ऑफ द फॉर्मिपिजोल. फिर हम क्या कर सकते हैं compete with the poison to certain receptors. हमें पता है जो भी drugs होते हैं they act on the specific receptors inside the body, and we can also prevent the poisoning condition by competing with the certain receptors. For example, in the case of the opioids poisoning, we use the antidotes like naloxone. Then comes the block the receptors through which the toxic effect is mediated. कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा रिसेप्टर है, उसको ही हमने ब्लॉक कर देना है टोटली. ना वहां पर हमारा जो पॉइजन है वो अटैच होगा वो केमिकल सब्सटेंस, और ना ही वो अपना जाके इफेक्ट देगा. सर्टेन पॉइजनिंग क्या होती है उसके लिए हमें ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है टू बाईपास द इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग. फॉर एग्जांपल जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है तो क्या होता है हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाता है इंस्टेड ऑफ दो ऑक्सीजन. अब हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं है तो दैट्स गिव्स द इफेक्ट. तो हम उसको डिअटैच करने के लिए हीमोग्लोबिन से हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं. और इन द केस ऑफ साइनाइड थेरेपी इसमें भी हम वही करते हैं. टू बाईपास द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन हम उसका एंटीडोट प्रोवाइड करते हैं. सो एंटीबॉडीज भी कुछ यूज होती हैं एज द एंटीडोट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ द पॉइजनिंग. फॉर एग्जांपल डिजीबैंड एंड एंटीवेनम्स. इन द केस ऑफ द वेनम मैंने आपको बताया स्नैक वेनम जो होता है सिर्फ उसका एंटीडोट अवेलेबल है. सर्टेन काइंड ऑफ द एनिमल पॉइजनिंग और आर्थ्रोपोड बाइट्स कंडीशन में भी जो है वो सर्टेन एंटीडोट तो आइडर अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल सपोर्टिव थेरेपीज इज आल्सो अवेलेबल टू सेव द पेशेंट लाइफ हु इज कमिंग विद द पॉइजनिंग. सो देन आ जाती है हमारी फिजिकल एंटीडोट. सो फिजिकल एंटीडोट्स आर आल्सो अवेलेबल जो कि फिजिकली बाइंड कर जाती हैं टू द पॉइजन एंड दे mitigate the poisoning effect. For example, in the case of the toxin substances, they have to change that, they have to interfere with the poison with through their physical properties, because the poisonous substance have the property to bind with any physical substance once in the body, and they either don't change the nature and the property of the poison, but they do have actually uh, some sort of neutralizing effect on the poison. For example, जो हमारा activated charcoal होता है, it bind a lot of number of the poisonous substances inside the stomach or in the GIT tract, and they absorb. Absorption is something else. Absorption of the poisoning in the systemic circulation is poisoning, but adsorption, AD, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ए बी होती है. एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन होती है कि कोई सब्सटेंस जो है वो फिजिकली बाइंड कर गया है टू दी पॉइजन. फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है इट हैज दी लार्ज बाइंडिंग साइट्स, तो वहां पर जो हमारे सब्सटेंस है पॉइजन है वो बाइंड हो जाता है. सो एब्जॉर्प्शन इज द एडिशन ऑफ द एटम्स आयंस इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम अ गैस liquid or dissolved substances. The process is a kind like it creates a film of absorption, adsorption on the surface of the adsorbent.
तो जो बेसिक एड्सॉर्बेंट है जो कि पॉइजन सब्सटेंस को अपने साथ एडजॉर्ब कर लेता है एज अ एडजॉर्बेंट, वो है हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल। सो सर्टेन कंडीशंस में कोटिंग ऑन दी स्टमक लेयर भी कर लेते हैं या जीआईटी ट्रैक भी कर लेते हैं। इन दी केस फॉर एग्जांपल हम पेशेंट ने कोई ऐसा एसिड ले लिया है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस ले लिया है जिसकी वजह से उसकी जो म्यूकोजा लाइनिंग है वो डैमेज हो गई है। सो अ मिक्सचर ऑफ एग मिल्क एंड द ऑयल कैन बी यूज्ड as a coating over the mucosa in the case of the poisoning, and it can be a dissolving effect. For example, uh, in the case of the substances like 10% alcohol or glycerine or the carboxylic acid, it's used as antidote जो कि dissolve कर लेती है, dilute कर देती है। normal saline can also use for the dissolving and the dissolution of the poison, ताकि जो उसकी dilution से है उसकी जो है वो हम उसका gastric lavage या फिर उसका stomach irrigation या फिर उसकी bowel irrigation कर लें with the dissolving the substance with that poison with that डाइल्यूटेड और डिसॉल्विंग सब्सटेंस, ताकि उसकी जो पॉइजनिंग है उसको हम मिटिगेट या मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चारकोल एज अ यूनिवर्सल एंटीडोट। Activated charcoal is available. So it is produced by pulverization of the carbonious substances, sawdust, peat and the coconut shell कि इसकी जो है वो पल्वनाइजेशन से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एक्टिवेशन के लिए हम इसको हॉट एयर से रोट करते हैं। द इंटरनल सरफेस जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर ऐसी साइड्स इस तरह अवेलेबल हो जाती हैं डेट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, और उसकी जो एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है थ्रू दैट एक्टिवेटेड हॉट हीट एयर, और उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। अगर हम सिर्फ जो है वो पल्वेनाइज्ड कार्बोनेट सब्सटेंस की बात करें तो उनकी एक्टिवेशन जब तक नहीं होती तो वो इतने एक्टिवली बाइंड नहीं होते पॉइजन से, बट जब हम उनकी हॉट एयर से जब उनकी हम एक्टिवेशन कर देते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ टू द पॉइजन है वो बढ़ जाती है। So adsorption result from weak intermolecular van der Waals forces. So जो activated charcoal होता है जिसको हम ACB कहते हैं, can prevent the systemic availability and availability, और उसका जो एक्सपोजर होता है टू द स्टमक एंड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वो हम कम कर देते हैं। इससे क्या होता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर अगर हम चारकोल दे दें पेशेंट को तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन साइड्स हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन है टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। In the optimal dose probably 40/10. For example, 1 gram of the जो charcoal होता है it can bind to the 40 gram of the जो है वो drug. So it has a huge activated sites, तो स्टिल इट इज नॉट 100% वर्किंग। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने पेशेंट को 3 या 5 ग्राम चारकोल दे दिया है तो इट हैज बाइंड विद 100% ऑफ द टॉक्सिन। नो, वी स्टिल हैव टू गिव द सिस्टमिक एंटीडोट एंड स्पेसिफिक सिस्टमिक or symptomatic treatment to the patient. So charcoal, activated charcoal do have the universal antidote effect, but certain kind of the lead poisoning and the metal poisoning condition में charcoal have no effect, क्योंकि charcoal जो है वो स्मॉल सब्सटेंसेस के साथ बाइंड कर लेता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं उसके साथ इसकी बाइंडिंग नहीं होती। सो अगर पेशेंट जो है वो लेड पॉइजनिंग के साथ आया तो उसको हम चारकोल दे रहे हैं तो इट इज टोटली यूजलेस। तो हमने देखना है कि पेशेंट किस टाइप की पॉइजनिंग के साथ आया है, हमने उसको रूल आउट करना है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर द treatment of that patient. So then comes the contraindication है इसकी lithium, iron, potassium and ethanol overdose condition में, तब poisoning of condition में it has no effect. Then comes the chemical antidote. So interact specifically with the toxins and toxicant to neutralize the toxicant effect. And like metal chelators combined with metals to form complex with them, and they avoid their kidney elimination effect. And like that, they have to chemically bind with that. For example, they might form complex formation process and DMSA इनको पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंडीशन में फॉर एग्जांपल एंटीडोट में कम्प्लेक्स विद टॉक्सिकन केमिकल्स, एंड जब कम्प्लेक्स बन जाता है तो वो जो है वो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि उनका जो साइज जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन से बढ़ जाता है एंड दे लूज देयर nature to bind with the receptor and to give their effect with the help of the complex formation. टेट्रासाइक्लिन पॉइजनिंग और जो हमारे मेटल पॉइजनिंग है उसकी कंडीशन में हम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं डीएमएसए, डेमर, caprol and dimercaptosuccinic acid are sulfohydryl compound that bind with the metals like arsenic acid and lead. DMSA arsenic acid and lead के साथ बाइंड कर देती है और उसके साथ जो है उसका केमिकल एंटीडोट के तौर पर एक्ट करती है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है।
specific binding agent like EDTA, difloxamine, and they are available for substances, and they form a chelation with the metals, and they form a complex with the water soluble complex. फिर एंटी केमिकल एंटीडोट में अगर हम बात करें तो एंटी वेनम्स एंड एंटीबॉडीज भी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटॉक्सिन फॉर द डिजिट टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिसिटी की कंडीशन में हम डिजिटॉक्सिन फैब देते हैं जो कि उसका इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडी है। और इन स्पेसिफिक केस ऑफ द वेनम जो पॉइजनिंग होती है इस कंडीशन में भी हम उसकी एंटीबॉडीज देते हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक कन्वर्जन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट लाइक नाइट्रिक इंटरैक्ट विद द हीमोग्लोबिन एंड साइनाइड टू फॉर्म द सायानोमीथामोग्लोबिन विच इंटरैक्ट विद द साइनाइड, और उसको जो है वो उसकी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम जो है वो उसका इंटरफेयर करके उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको मेटाबॉलिकली डिटॉक्सिफाई कर देती है। आगे आ जाती है एंटीडोट्स की टाइप में फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। दे हैव द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड दे गिव देयर इफेक्ट through physiological mechanism of action. For example, they produce the opposite effect to the poison. पॉइजनिंग कंडीशन में फॉर एग्जांपल जो पॉइजन था वो हमारी स्किन एरोजन कर पा रहा था, अब जो हमारा एंटीडोट है वो स्किन एरोजन को प्रिवेंट करवा रहा है। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, इट convert hemoglobin into meth hemoglobin in case of the in order to bind with the cyanide। तो जो मेथ hemoglobin है जो मेथ मेथो मेथो मेथीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी जो साइनाइड बाइंडिंग है वो इंटरफेयर हो जाती है एंड इट एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल एंटीडोट फॉर दी साइनाइड पॉइजनिंग। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट भी आ जाती है दैट काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन बाय प्रोड्यूसिंग द ऑपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल द एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर जो है वो हमारे मस्क्रीनिक रिसेप्टर के साथ एट्रोपिन बाइंड होता है एंड इट गिव्स द एंटीडोट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल द फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट में न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिकेंट and they have the major 5 mechanism of action। वो क्या क्या है वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सो पहला आ जाता है प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। पहला फिजियोलॉजिकल एंटीडोट में क्या है कि उसकी जो भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि अपनी टॉक्सिसिटी शो कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन को हमने स्टॉप करना है। more effective, for example, before the toxic metabolite activated। टॉक्सिक मेटाबॉलिक कन्वर्जन से पहले पहले ही हमने उसको प्रिवेंट कर लेना है। फॉर एग्जांपल जो हमारा इथेनॉल होते हैं या फिर हमारा 4 मिथाइल पैराजोल है, इट compete with the alcohol dehydrogenase for the prevention of the formation of the toxic intermediate of the metabolism of the ethanol and the 4 methyl pyrazole and to the ethynyl glycol, and in the case of the second type by facilitating of the more rapid and the complete elimination of the A toxin। हमने उसकी प्रॉपर जो है वो उसकी कंप्लीट एलिमिनेशन कर दी है टॉक्सिकन की। फॉर एग्जांपल चेंजिंग द फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ द टॉक्सिन अलाउइंग द बेटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इतना अच्छा नहीं होता, तो हमने कोई एंटीडोट दे के उसकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो बढ़ा दी, उसकी जो प्रोटीन प्रोहिबिट कर दी उसकी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल मोलिबी बेरिलियम फॉर एंड सल्फेट कॉपर sulfate for the copper toxicity by making it making the copper more water soluble, और इस तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब वो बढ़ जाती है। अब जब वो बॉडी में रहेंगे तो अपना वो पॉइजन इफेक्ट भी नहीं देंगे। थर्ड आ जाती है बाय competing with the toxicant action to the receptor site। it can bind with the competitive antagonism and it can bind with the non-competitive antagonism। तो अगर हम competitive antagonism की बात करें तो naloxone आ जाती है जिसको हम naltrexone भी कहते हैं। they bind with the opioid dependence and they have longer action and affinity to the mood receptors। तो जो हमारे opioid receptors होते हैं उसकी टाइप होती है mood receptor, जो major receptor of the opioids हैं। तो ये क्या करते हैं naloxone उसके साथ जाके competitively bind कर जाता है और longer ड्यूरेशन के लिए बाइंड कर जाता है। अब जब ओपियोइड्स के पास कोई साइट ऑफ एक्शन और साइट ऑफ बाइंडिंग ही नहीं होगी तो उनका इफेक्ट भी नहीं आएगा। फ्लोमेनाजिल भी आ जाता है डेट बाइंड विद दी बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स और फिर उसको अफेक्ट जो है वो एंटागोनाइज करता है। एट्रोपिन से सेम जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और जो कार्बामेट्स और जो अदर जो भी हमारे एंटीकोलिनर्जिक या पैरासिम्टो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं उनके जो एंटीडोट्स होते हैं डेट बाइंड विद दी एंड पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स एंड इट इज यूज्ड to correct the condition like bradycardia, morphine digitalis and the beta blockers। फिर आ जाते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। ये भी टाइप ऑफ दी जो है वो रिसेप्टर बाइंडिंग है बट दे आर बाइंडिंग नॉन कॉम्पिटेटिवली। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की पॉइजनिंग में या वेरम्परल की पॉइजनिंग कंडीशन में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ब्लैक स्पाइडर विडो एंड लेड
oxalic acid, for example, these are all used as the non-competitive antagonist of the poisoning condition, और उसमें कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है. देन कम द पैरालीडोक्साइन. ये SEH एक्टिवेटर है, acting by breaking the alkyl phosphate CHE bound, and it is used as a organophosphate toxicity. Then आ जाती है DAM, diacyl monoxide, and action is same but PAM, but it uh, have more blood brain barrier penetration, और इस तरह ये अपना नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट इफेक्ट देती है. देन कम दी बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिक इफेक्ट. यानी कोई भी ऐसे रिसेप्टर्स थे जहाँ पे वो जो पॉइजन है वो बाइंड कर रहा है और अपना इफेक्ट दे रहा है पॉइजनस, उसके साथ वो बाइंड कर जाएगा. द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इंड्यूस्ड बाय द टॉक्सिन इज प्रिवेंटेड बाय द एंटीडोट, ऑल्दो दे आर टॉक्सिकेंट्स एंड दे माइट बी स्टिल active, but they still bind with the receptor site, and they minimize an anti as a, act as an antidote for the poisoning. For example, atropine blocks the physiological effect of the acetylcholine by binding at the cholinergic synaptic or the binding to the muscarinic receptor या neuromuscular junctions of the organophosphate toxicity में जाकर ये cholinergic receptor के साथ बाइंड करते हैं और ब्लॉक करते हैं उन रिसेप्टर को, ताकि ना वहां पर जो है वो हमारे organophosphate या कार्बोमेट्स बाइंड करें, ना ही वो अपना इफेक्ट दें. पांचवी टाइप आ जाती है इसकी by aiding in the restoration of the normal function. The antidote promote the return of the normal function by repairing the defect of the enhancing the function that correct the effect of the poison. For example, जो methylene blue है, methylene blue, it is used in the case of the nitrate poisoning. So जो methylene blue है interact with the NADPH receptors, and it reduces the ferric acid, ferric ion interaction with the methyl methemoglobin and back to ferrous ion to the hemoglobin, which again transfer the oxygen. क्योंकि उसकी नाइट्रेट पॉइजनिंग कंडीशन में जो हमारी फेरिक आयरन होता है वो मेथोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे फेरस आयन बाइंड नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से एक्टिव ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होती, तो उसको मिथाइलिन ब्लू जो है वो रिवर्स करता है. देन कम दी एसिटाइलसिस्टीन दैट इज यूज्ड इन द एंटीडोट ऑफ द paracetamol या acetaminophen poisoning. So it supplies as a precursor for the amino acid of the glutathione, which serve as a biological antioxidant against the acetaminophen या paracetamol toxicities. Studies have shown they are the antidote for them. So drugs and antidotes and the toxicity जो commonly antidotes available है, इसकी आपको एक list provide कर दी गई है. It is N-acetylcysteine. It is pronounced as N-acetylcysteine. It is pronounced as naltrexone. It is pronounced as folic acid. It is physiostigmine. It's atropine. It's demercaprol. It's flumazenil. It's methylene blue. It's pralidoxime. It's protamine sulfate. It's epinephrine. Hydrocortisone sodium. It's calcium chloride. It's DMSA. It's glucagon. L-carnitine. Vitamin K. Deferoxamine. Digoxin. Immunofab, and formazole. So these are the commonly available एंटीडोट. एंड किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी पॉइजनिंग कंट्रोल सेंटर में दिस 20 set of antidotes should be always available, and because these are the common antidote that should be available in any healthcare profession, in any healthcare setup. तो अब आगे हम देखते हैं कि इन कंडीशंस में, इन पॉइजनिंग कंडीशन में क्या क्या इनकी स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं इन ड्रग्स कंडीशन में, और इन ड्रग्स और इन केमिकल सब्सटेंस के लिए क्या डोजेज हैं और उनकी एंटीडोट्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरासीटामोल की पॉइजनिंग. तो जो पैरासीटामोल है, आइदर इट इज अ वेरी सेफ ड्रग, बट जब हम इसकी 12 ग्राम से या फिर इसकी 10 से 12 ग्राम जब हम इसकी ले लेते हैं ड्रग्स, इसकी टैबलेट्स जो कि तकरीबन कितनी गोलियां बनती हैं, 24 टैबलेट्स बनती हैं, और तकरीबन 2 ब्लिस्टर बन जाते हैं. यानी अगर कोई पेशेंट सुसाइडल इंटेंशन के साथ 24 टैबलेट्स ऑफ द पैरासीटामोल ले लेता है, तो दैट्स लीड टू पॉइजनिंग. तो उसकी जो है हमने एक्सपोजर, उसकी टॉक्सिसिटी की, उसकी मैनेजमेंट, उसकी डिपेंडेंस हमें ट्रीट करनी है ऑन द बेसिस के उसने कितनी पैरासीटामोल ली है, एक्सपोजर टाइम कितना है, टॉक्सिक सब्सटेंस की नेचर कितनी है, वो अपना
कहाँ पे जाके अपना इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी है वो सबसे पहले आपके लीवर को डैमेज करती है। पेशेंट की जान तो शायद बच जाए, बट उसका लीवर डैमेज हो सकता है, उसकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में जो एंटीडोट है दैट इज एन एसिटाइलसिस्टीन, जो कि मोस्टली यूज होता है इन दी केस ऑफ द इन दी कफ कंडीशन एंड एसिटाइलसिस्टीन। इसके सैशेज, इसके पाउडर, इसके आईवी डोज अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी सिर्फ और सिर्फ सैशेज अवेलेबल हैं। इसके जो है आईवी जो है वो एन एसिटाइलसिस्टीन इज नॉट अवेलेबल। इसकी अगर हम डोज की बात करें, दैट इज 140 मिलीग्राम पर केजी फॉलोड बाय 70 मिलीग्राम पर केजी इवन आफ्टर द 4 आवर्स, यानी 4 आवर्स तक हम उसको जो है वो बार बार एंटीडोट देते रहेंगे। एंटीडोट सिर्फ एक बार नहीं, ऑन द बेस ऑफ द पेशेंट कंडीशन और उसकी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बार बार एंटीडोट भी दे सकते हैं। आईवी, और आईवी अगर हम देंगे तो 150 मिलीग्राम पर केजी इन्फ्यूज करेंगे फॉर द 15 मिनट्स एंड रिपीट इफ रिक्वायर्ड। जब टॉक्सिसिटी अभी हमें भी लग रही है कि उसकी सर्टेन लेवल ऑफ द टॉक्सिसिटी अभी भी उसकी ब्लड में अवेलेबल है, तो हम अगेन उसको आईवी देंगे एंटीडोट। मॉर्फिन और उसके जो ओपियाइड डिफरेंट हैं, तो उनकी जो एंटीडोट है दैट इज नैलोक्सोन। तो ये भी बार बार देते हैं पेशेंट को, 15 तक वाइज लग सकती हैं एक टॉक्सिसिटी के साथ। सो 1 to 2 मिलीग्राम ऑफ द आईवी रिपीटेड एवरी 10 to 15 मिनट्स, हर 10 से 5 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मैक्सिमम हम पेशेंट को नैलोक्सोन की जो वाइज हैं वो लगाते हैं बार बार, टू अवॉइड दी टॉक्सिसिटी ऑफ दी मॉर्फिन, बिकॉज इट हैज पेशेंट का जो सीएनएस डिप्रेशन ये हो जाता है, पेशेंट का जो है रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है मॉर्फिन एंड ओपियाइड टॉक्सिसिटी से। देन कम दी हेपेरिन। हेपेरिन की पॉइजनिंग क्या होगी, पेशेंट की ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, एक्टिव ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, या पेशेंट को हेमरेज स्टार्ट हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि वो हेपेरिन की पॉइजनिंग हो गई है। तो उस कंडीशन में जो हम पेशेंट को एंटीडोट प्रोवाइड करेंगे दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट की जो हम 1 मिलीग्राम आईवी देते हैं एवरी 100 यूनिट्स ऑफ द हेपेरिन के साथ, यानी पेशेंट को अगर पेशेंट ने अगर 100 IV यूनिट्स ऑफ द एंटीडोट उसने सॉरी हेपरिन ली है, और उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग आ रही है, तो 100 के लिए हम उसको 10 मिलीग्राम ऑफ दी प्रोटामिन सल्फेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो 1 मिलीग्राम ऑफ द प्रोटामिन सल्फेट है, इट कैन बाइंड एंड इट कैन एक्ट एज एंटीडोट टू द 10 यूनिट्स ऑफ द हेपरिन। देन कम द साइनाइड। साइनाइड इज का जो एंटीडोट है वो है सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। इसका अगर हम सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट सोडियम की बात करें तो इट्स लाइक 10 मिलीग्राम हम पेशेंट को देते हैं 3% सोल्यूशन ऑफ द आईवी, और सोडियम थायोसल्फेट अगर हम दे रहे हैं तो 10 ml ऑफ द आईवी सोल्यूशन भी देते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉपर पॉइजनिंग की कंडीशन में। कॉपर पॉइजनिंग कंडीशन में हम पेशेंट को देते हैं डी पेंसिलिनमाइन। उसका हम 10 मिलीग्राम देते हैं पर केजी पर डे, यानी 10 मिलीग्राम। अगर पेशेंट जो है वो 70 kg का है तो हम उसको 700 मिलीग्राम देंगे। अगर पेशेंट जो है वो 7 kg का है तो 700 मिलीग्राम पर डे देंगे, और अगर पेशेंट जो है वो 70 kg का है तो हम उसको 7000 मिलीग्राम या 7 ग्राम पर डे देंगे ओरली एंड 4 डिवाइडेड डोज में इन दी 3 to 7 डेज। क्योंकि कॉपर पॉइजनिंग एट इंस्टेंट हम इसको एंटीडोट नहीं दे सकते। कॉपर की जो पॉइजनिंग होगी इसको हम विद टाइम ट्रीट करेंगे। आयरन पॉइजनिंग इट्स ऑल्सो आ हैवी मेटल पॉइजनिंग अगेन। सो इसमें हम डेस्फेरोक्सामीन यूज करते हैं 15 मिलीग्राम पर केजी पर आर पर आईवी देते हैं। आर्सेनिक पॉइजन में हम डेमर कैप्रोल यूज करते हैं। फर्स्ट डे हम उसको 400 से 500 800 मिलीग्राम डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे इन द डिवाइडेड डोज। एंटीडोट हमेशा डिवाइडेड डोज में देंगे। अगर और इंस्टेंट हमने उसको उसी वक्त एंटीडोट दे दिया है, फिर भी हम मॉनिटर करेंगे कि अगर जो है वो फुल्ली ट्रीट नहीं हुआ तो हम उसको डिवाइडेड डोज में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड भी आईवी पुश या आईएम देंगे। लेड पॉइजनिंग की कंडीशन में हम कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट यूज करेंगे, जिसको हम ईडीटीए भी कहते हैं। 1 मिलीग्राम 1 ग्राम इन 250 ml ऑफ द नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन ट्वाइस अ डे। इंसुलिन पॉइजनिंग कंडीशन में पेशेंट ने बहुत ज्यादा इंसुलिन ले लिया, अब उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तो हम उस पेशेंट को डेक्सट्रोज देंगे। 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, 25% डेक्सट्रोज, ग्लूकोज भी दे सकते हैं। 40 ml ऑफ द 50% सोल्यूशन 15% डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं। मेथनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में हम पेशेंट को इथानॉल देंगे दैट प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ द मेथनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल टू इट्स टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। तो उसके कंडीशन में हम इथानॉल देंगे, 10% इथानॉल गिवन ओरली। कार्बन मोनोऑक्साइड कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको हैवी ऑक्सीजन प्रेशर प्रोवाइड करेंगे ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको रिप्लेस कर दे ऑक्सीजन 100% बाय हाई फ्लो नॉन रीब्रीदिंग मास्क के। ऑक्सीजन जो है वो
फुल्ली उसकी जो है वो लंग्स के अंदर जाए और फुल्ली जो है वो अब्जॉर्ब हो और फुल्ली जो है वो हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे। तो पेशेंट जो है वो तकरीबन विद इन 10 to 15 मिनट्स कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से जो है वो डेड हो सकता है। इसलिए हमें 100% हाई फ्लो नॉन रीब्रीथिंग मास्क से पेशेंट को हैवी ऑक्सीजन देनी पड़ेगी और इसी तरह हम पेशेंट को जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं फॉर दी फ्रॉम दी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। फिर आ जाती है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग कंडीशन में हम उसको मिथाइलिन ब्लू देंगे 0.1% सोल्यूशन स्लो आईवी में या 1 to 2 मिलीग्राम पॉइजनिंग पर पेज पर वेट ऑफ द पेशेंट बॉडी। वारफरिन पॉइजनिंग में भी हैवी जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है पेशेंट को, उसमें हम पेशेंट को ब्लड भी दे सकते हैं। बट द बेस्ट एंटीडोट इज विटामिन के ऑक्साइड आयरल। हम उसको आईवी दे दें या उसको हम ओरली दे दें। 10 मिलीग्राम IM भी दे सकते हैं फॉलोड बाय द 5 मिलीग्राम IM या IV एवरी 4 आवर। हम इवन विटामिन के जो है वो पेशेंट को ऑरेंज जूस के अंदर भी डाल के दे सकते हैं इन द केस ऑफ द वारफरिन पॉइजनिंग। इट डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट को कितनी जल्दी हमने मैनेज करना है, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग होती है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द ड्रग। पेशेंट कितनी जल्दी पेशेंट को मार सकती है, पेशेंट की कितनी जल्दी जान ले सकती है। पॉइजन क्या है, नेचर क्या है उसकी, उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर या इंजेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट जो है वो 4-5 घंटे पहले जो है वो पॉइजन लेकर आया है, अब तो उसकी सिस्टमिक जो है वो ड्रग अवेलेबल होगी ही होगी, वहां पे अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही होगी। उस कंडीशन में अगर हम उसके बॉल इरिगेशन करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। बट इन दैट केस अगर हम उसको IV एंटीडोट प्रोवाइड करें तो उस कंडीशन में पेशेंट की जान बच सकती है। बट इफ इन द केस पेशेंट जो है वो अभी आधे घंटे पहले जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ द टैबलेट्स लेकर आया है टू किल हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो उस कंडीशन में अगर हम गैस्ट्रिक लवाज या फिर बाउल इरिगेशन करें तो इट इज जो है वो बेनिफिशियल। सो क्वांटिटी कितनी ली पेशेंट ने ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना हमने उसको एंटीडोट प्रोवाइड करना है। आगे आ जाती है बेंजोडाइजेपिन। टॉक्सिसिटी की कंडीशन में हमने जो है वो पेशेंट को फ्लोमेंसिल प्रोवाइड करना है 0.5 मिलीग्राम IV इन द रिपीटेड रिक्वायर्ड मैक्सिमम 3 मिलीग्राम। इन द केस ऑफ द कैफीन टॉक्सिसिटी हम उसको पेशेंट को जो है एस्मोलोल प्रोवाइड करेंगे because caffeine poisoning can also cause contraction inside the body and the um, CNS depressant and CNS activation sorry and the respiratory depression। तो उसमें हम एस्मोलोल देंगे 25 से 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन दी IV। एट्रोपिन देंगे, एट्रोपिन में हम फिजिस्टिगमीन देंगे एंड 1 मिलीग्राम IV स्लोली मे बी रिपीटेड इफ सिम्टोमेटिक इट रिपेयर। यहाँ तक हमने देख ली कौन कौन से मेजर हमारे एंटीडोट्स थे, उनको कैसे कैसे हमने प्रोवाइड करना है, उनकी डोजेस कितनी होंगी, किन ड्रग्स की पॉइजनिंग कंडीशन में वो यूज होंगी, पॉइजनिंग को हमने इंडिकेट कैसे करना है, उसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किस ड्रग की पॉइजनिंग जो है वो किस ड्रग के साथ आई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक आगा खान की एक केस हिस्ट्री बताती हूँ। जो ड्यूरिंग रिसर्च मैंने केस हिस्ट्री पढ़ी आगा खान में, उसमें कुछ बच्चे आए जो कि जो है वो स्टमक अपसेट के साथ आए और जो है वो जो पेशेंट था उसकी जो सिम्टम्स थे दैट वाज क्वाइट सिमिलर टू द एल्यूमिनियम फॉस्फेट पॉइजनिंग। सो बच्चों ने एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिया भी नहीं था जो कि वीट टैबलेट्स होती हैं। पेशेंट बच्चे उससे एक्सपोज नहीं थे और नहीं पता लग रहा था कि बच्चों ने ये कैसे लिया। सो बाद में पता लगा कि वो जो एरिया था वो ह्यूमिड एरिया था और वहां पर जो थी वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट या जो वी टैबलेट्स थी वो पड़ी हुई थी। और जब वो इन कंटेक्ट विद दी वेपर्स आई, वाटर वेपर्स जो कि नॉर्मली सर्दियों में जो है हमारा ह्यूमिड लेवल ही ज्यादा होता है, तो उसमें क्या हुआ जब एल्यूमिनियम फॉस्फेट उसके साथ आए इंटैक्ट विद वाटर इन द एक्वस नेचर, तो उसमें फॉस्फेरिन गैस प्रोड्यूस हुई। उन बच्चों ने वो फॉस्फेरिन गैस इनहेल की, दैट लीड टू द टॉक्सिसिटी और उन बच्चों में एल्यूमिनियम फॉस्फेट की टॉक्सिसिटी उसकी सिम्टम्स एंड साइंस शो हुए एंड द किड्स अनफॉर्चुनेटली डाई विद दैट पॉइजनिंग, क्योंकि उनकी प्रॉपर इंडिकेशन और प्रॉपरली पॉइजनिंग की कंडीशन जो थी वो उनकी पता नहीं लग रही थी। आगे हम देखते हैं एंटीडोट्स और उनकी मेमोरी ट्रिक्स क्या है। अब हमने एंटीडोट पढ़ ली, मेजर मेजर एंटीडोट्स नहीं, अब आगे हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनको हमने एडमिनिस्टर कैसे करना है, कंडीशंस क्या होंगी, कौन कौन से मेजर ब्रांड्स हैं इसके लिए, और इसकी डिटेल भी आगे हम पढ़ेंगे। बट इसके पहले हम देखेंगे कि एंटीडोट्स हैं उनकी मेमोरी ट्रिक्स क्या है, तुम याद कैसे रखें। सो एसिटोमिनोफिल, इट्स टाइलेनोल। एसिटामिनोफिल
टाइनिनोल या फिर जिसको हम पैरासीटामोल भी कहते हैं, इसकी जो एंटीडोट है दैट इज एन एसिटाइलसिस्टीन। एसिटो, ACE इन दी एसिटामिनोफेन एंड ACE इन दी एसिटाइलसिस्टीन, एस एस, इससे हम याद कर लेंगे। इसके अलावा TYL जो है एसिटो एसिटाइलसिस्टीन में भी है एंड टाइलिनोल में भी है, जो इसका मेजर ब्रांड है। तो इस तरह एसिटोमिनोफिन का ACE, एसिटाइलसिस्टीन का ACE एंड द टाइलिन द टाइलोनोल जो कि इसका मेजर ब्रांड है पैरासिटामोल का, तो दैट हेल्प्स टू you remember that acetaminophen and acetylcysteine, SS। then comes the opioids and the narcotics। इनकी पॉइजनिंग में जो है मेजर वो है opioid narcotics है। तो नारकोटिक्स में Na है, नैलोक्सोन में भी Na है, और जिसका मेजर ब्रांड है दैट इज नारकैन। सो इन सब में क्या आ रहा है, Na। दैट हेल्प्स us to remember narcotics, Na, naloxone, Na, and the Narcan, Na। So in also the naloxone में O आता है, OO, and the opioids के start में भी O आता है, so that can also be our memory trick for the remembering of the opioids antidote, that is naloxone। You have to remember, you have to unfortunately cram the antidotes। आपको इसका रट्टा मारना पड़ेगा कि क्या ड्रग्स हैं, उनके एंटीडोट्स क्या हैं, एस्टामिनोफेन एंड एसिटाइलसिस्टीन। इजी ट्रिक्स, मेमोरी ट्रिक्स यूज करें, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू शुड नो द बेसिक ड्रग्स, उनकी पॉइजनिंग के कंडीशन में हमने कौन सा एंटीडोट देना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओपियोइड्स की में नैलोक्सोन, बीटा ब्लॉकर्स में ग्लूकागोन, बीटा ब्लॉकर बीबी गन, बीबी बीटा ब्लॉकर उसका बी, और गन में क्या आ गया हमारा, ग्लूकागोन। बीबी क्या है, बीटा ब्लॉकर का पहला बीबी, एंड द गन इज फ्रॉम द ग्लूकागोन। सो बीबी गन वुड हेल्प अस टू रिमेंबर बीटा ब्लॉकर का जो एंटीडोट है दैट इज ग्लूकागोन। इथाइलिन ग्लाइकोल एंड द मीथानोल का जो है वो है फोमी मिजोल। तो इसमें ओल 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 तीनों में और आ रहा है, all in the ethylene glycol, all in the methanol, and all in the antidote जो कि फोमी मिजोल है। देन कम दी बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का है क्या है, फ्लुमेजिनिल। इन दोनों में क्या आ रहा है, एज एज, बेंजोडियाजेपिन AZE, एंड फ्लुमेजिन में भी क्या आ रहा है, एज आ रहा है। तो दैट एज विड हेल्प अस टू रिमेंबर दैट बेंजोडियाजेपिन का जो है वो एंटीडोट दैट इज फ्लुमेजिनिल। देन कम द डाइजॉक्सिन। इसका एंटीडोट बहुत इजी है, इसके नाम में ही ड्रग का नाम रहता है डाइजॉक्सिन इम्यूनोफैब, जिसको हम डाइजॉक्सिन फैब भी कह सकते हैं, जो कि इसकी एंटीबॉडीज है। तो डीजी, तो डाइजॉक्सिन डाइजॉक्सिन विल हेल्प अस टू रिमेंबर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसकी जो ब्रांड है डिजी फैब एंड डिजी बिंड, वो भी हम याद रख सकते हैं, डिजी डाइजॉक्सिन, digoxin and digifab and the digipine, that had to remember, that is very certain. It's a very easy memory trick to remember that the antidote of the digoxin is digoxin immunofab। then comes the iron। आयरन में है डिफिरोक्सामिन। हमें पता है आयरन को हम फेरस भी कहते हैं, उसको हम Fe भी कहते हैं, फेरस फेरिक एंड एक्सेट्रा लाइक दिस। तो आयरन का जो है वो Fe आता है उसके अंदर, तो इसके अंदर भी Fe आ रहा है, डीफी रोक्सामाइन। तो Fe is the memory trick to remember the antidote। then come the copper। इसका है पेंसिलिनामाइन। सो कॉपर को हम फॉर एग्जांपल कॉपर के जो है वो पेनिस बने होते हैं। कॉपर जो है वो हमें पता है, कॉपर की जो है वो सिक्के बने होते थे। कॉपर जो है इट्स अ मेजर मेटल दैट इज यूज्ड इन द कॉइन। सो हम इससे याद करते हैं कॉपर पेनी, और इसी पेनी से पेनी मीन। सो इसी तरह इसका हम एंटीडोट भी याद सकते हैं कि कॉपर का पेंसिलिनामाइन है। एक तरह हम दोबारा क्विक क्विक रिमेमरी ट्रिक्स करते हैं, एसिटामिनोफेन एंड एसिटाइलसिस्टीन, एसेस, ओपियोइड्स, नारकोटिक्स, नैलोक्सोन, Na, बीटा ब्लॉकर्स, बीबी गन, बीटा ब्लॉकर्स व्हाट, glucagon, ethylene glycol, all, and the fumazole, and benzodiazepine, is flumazenil, and digoxin aminofab, DG, and iron, Fe, and deferoxamine, and copper, penicillamine, copper, penicillamine. So that's the easy memory trick to remember the antidotes। Then comes the lead। lead में है EDTA। हमें पता है कि E जो हमारा लेड है उसकी जो प्रॉपर कुछ EAD आता है, इसी तरह ही हमारी जो EDT है उसमें भी EDA आता है। तो हम इस तरह याद सकते हैं कि EAD इन दी बोथ ऑफ दी
जो है वो स्पेलिंग ऑफ द लेड एंड द ईडीटी है वो सेम है, बस इधर एल है उधर टी है, बाकी दो जो डेफिनेशन, बाकी जो स्पेलिंग है उसकी वो तकरीबन सेम सेम है, तो लेड एंड ईडीटी है। देन कम द सैलिसाइलेट्स, एस्पिरिन, और उसकी जो एंटीडोट है दैट्स बाइकार्ब, चारकोल एंड डायलिसिस। तो इससे हम रिमेम्बर कर सकते हैं बैड, बैड से बाइकार्ब, बैड से एक्टिवेटेड चारकोल, एंड द बैड से हम डायलिसिस याद कर सकते हैं सैली साइक्लेट या एस्पिरिन की पॉइजनिंग में। देन कम्स द मर्करी, इट्स वेरी सर्टेन, डाई मर्का, डायमर्कप्रॉल, डायमर्कप्रॉल, मर्करी, मर्क एंड डायमर्क कैप्रोल, इसमें भी मर्क आ जाता है, यानी मर्करी मर्करी का जो मर्क है वो दोनों में कॉमन है। देन कम द टीसीए, हमारे जो एंटी एंजियोलिटिक्स हैं टीसीएस, उसमें हम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं। दोनों में जो सी ए टी वो कॉमन है, टीसीए एंड बाइकार्बोनेट्स, उसमें भी सी ए एन टी आता है। देन कम दी एक्स्ट्रा पैरामिडियल सिम्टम्स, डायफेनहाइड्रामीन, उसके एक्स्ट्रा पैरामिडियल सिम्टम्स के लिए हम डाई पैरामिड एंड पैरामिड, डायफेनहाइड्रामीन डायफेनहाइड्रामीन दोनों में जो है ड्रामीन ड्रामीन पैरामीड्रिन एंड द ड्रामी जो है वो पैरामिड, दोनों में कॉमन स्पेलिंग आ जाती है पी एच PYDRAME, एंड इसमें भी PYRAMID आ जाता है। आगे आ जाती है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका है कैल्शियम ग्लूकोनेट, दोनों में यम यम आता है, मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट 8 ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट है, तो दोनों में ईएम एंड 8 जो है वो कॉमन है। इंसुलिन ग्लूकोज, इंसुलिन ट्रीट हाई ग्लूकोज, सो एंटीडोट इज ग्लूकोज। हमें पता है इंसुलिन उन पेशेंट में यूज होता है जिनमें ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो अब जिन पेशेंट में इंसुलिन हाई हो गया तो उनको हम ग्लूकोज दे देंगे। दैट इज वेरी कॉमन एंड दैट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, इट्स अ very easy trick to remember the antidote of the insulin poisoning. Then comes the dopamine, dopamine की antidote क्या है, फेंटोलामीन, दोनों के अंदर क्या क्या आ रही है, अमीन, डोपामीन फेंटोलामीन, अमीन 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 दोनों कॉमन है। इजी ट्रिक रिमेंबर, फास्ट ट्रैक दोबारा हम इसका करते हैं जैसे हमने पहले किया, लेड ईडी ए ई ए डी, लेड और ईडीटी दोनों में आता है। सैलिसाइलेट बैड, बाकाब चारकोल एंड डायलिसिस, मर्करी मर्क मर्क, डायमर्क कैप्रोल, टीसीए, एसीटी कॉमन है सब में, बाकार्बोनेट्स, एक्स्ट्रा पैरामिडियल, पैरामिडियल कॉमन है, डायफेनहाइड्रामीन, मैग्नीशियम सल्फेट 8 एंड ईएम कॉमन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन, इंसुलिन का है ग्लूकोज, या बिकॉज इंसुलिन यूज टू ट्रीट ग्लूकोज हाई लेवल एंड वाइस वर्सा। डोपामीन अमीन अमीन अमीन, क्या था इसका एंटीडोट, फेंटोलामीन। So that is the memory tricks to remember the antidote, and that is, I hope this would be quite easy for you now to remember the antidotes, because as a student I know कि it's hard to remember such huge and such complex spellings and the definition and the name of the drugs जो कि आपने याद रखनी है। अब आगे हमारा इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे अपने मेजर एंटीडोट्स, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन सा ड्रग होगा, उसकी पॉइजनिंग हमने कैसे इंडिकेट करनी है, कौन कौन से ब्रांड नेम उन कंडीशन में अवेलेबल हैं, उन एंटीडोट्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, उन एंटीडोट्स का और प्राइमरी यूज क्या है, क्या वो स्पेसिफिकली सिर्फ एज एंटीडोट यूज हो रहे हैं या वो किसी और कंडीशन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनका सेकेंडरी यूज क्या है, और उनकी स्ट्रेंथ एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और उनके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। यानी एंटीडोट जरूरी नहीं है एंटीडोट हम पेशेंट को देते जाएं दैट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, नो, एंटीडोट्स डू हैव some certain sort of toxicities and patient की बॉडी में जाके वो भी certain kind of the toxicities can be showed by them, so antidote इतने भी नहीं देने। एंटीडोट उनका नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर सेफ, अगर उनकी भी कंसंट्रेशन पेशेंट की बॉडी में हाई हो जाएगी तो फिर हमें उनका भी एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा, तो दैट्स नॉट अ केस। हमें एंटीडोट भी जो है वो उनकी सर्टेन डोज पेशेंट में यूज करनी है टू अवॉइड दी toxicity of the antidotes and to prevent the and to prevent the पॉइजनिंग ऑफ द एंटीडोट्स। सो जरूरी नहीं है कि पेशेंट को ऑलरेडी किसी ड्रग से जो है वो टॉक्सिसिटी है, पॉइजनिंग है, तो हमने उसको एंटीडोट से भी पॉइजनिंग करवा दी। सो अ वेरी जो है वो स्पेसिफिक डोज एंड द डोजेज रेंज एंड द मल्टीप्लाइड डोज एंड द डिवाइडेड डोज एंड द आइदर ओरल या आईवी या आईएम या फिर सबक्यूटेनियस जो भी हम एंटीडोट यूज कर रहे हैं उसकी भी स्पेसिफिक डोज और रूट जो है वो हम फॉलो करेंगे। तो हम डिटेल में एक एक करके तमाम जो है वो एंटीडोट्स को पढ़ेंगे इन द पार्ट 1 एंड द पार्ट 2 इंशाल्लाह। आज अभी इसका पार्ट 2 में हम कुछ एंटीडोट्स को कवर करेंगे और कल के लेक्चर में भी हम इसको कुछ जो है वो कवर करेंगे। और आई होप
कि जब मैं रिसर्च कर रही थी अबाउट दी एंटीडोट्स ड्रग्स एंड इट्स पॉइजनिंग, तो आई केम टू नो कि ये जो टॉपिक है ये 2 लेक्चर में भी कवर अप नहीं हो सकता। सो माइट बी द नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो है उसमें भी इस जो है वो वेबिनार को हम एक्सटेंड करें और टॉक्सिकोलॉजी स्टडी एंड पॉइजनिंग को हम एक्सटेंड करें इन दी थर्ड एंड फोर्थ वेबिनार सीरीज पे भी। तो उसके भी सर्टिफिकेट जो है वो इसी के साथ अटैच होंगे। उन तीनों या चारों वेबिनार्स की जो है वो आपको ऑन द बेस ऑफ द अटेंडेंस आपको उसके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट फॉर दैट फॉर सर्टेन यू हैव टू अटेंड एटलीस्ट 75% ऑफ द वेबिनार, क्योंकि I hope the major thing is for you as a healthcare professional to get knowledge, not the get to get the certificate. Certificate is a sort of appreciation for you and a sort of acknowledgement that you have done this and you have the knowledge and you have the expertise on this. But if you don't have the expertise on, but you have the certificate, then there is a यूजलेस पेपर ऑफ सर्टिफिकेट। तो ज़रूरी है कि आप एंटीडोट की प्रॉपर नॉलेज भी रखें और इसको आप स्टडी करें और इसको ट्राई टू रिमेम्बर करें। मैंने आपको मेमोरी ट्रिक्स भी बताया, दैट्स दी ओनली थिंग कि आपको यही चीज़ें याद रहें। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है या फिर आपको लगता है कि इन 3 to 4 वेबिनार सीरीज में भी आपकी कोई क्यूरी रिगार्डिंग दी पॉइजनिंग और एंटीडोट जो है वो कवर अप नहीं हुई, तो आप इजीली या तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी जो है वो क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं, या आइदर इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड ऑब्वियसली try as soon as possible to reply to your क्यूरीज थ्रू एनी मीडियम जहाँ से आप मुझे अप्रोच करते हैं। बट आई डू अप्रिशिएट कि आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करें, अपनी क्यूरी इधर ही ड्रॉप करें। इट वुड बी क्वाइट कंफर्टेबल फॉर मी टू रिप्लाई यू ऑन दिस मीडियम रेदर देन कि मैं आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली रिप्लाई करूँ, बिकॉज थ्रू दैट मीडियम वो आंसर सिर्फ आप तक रहेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो अदर वुड बी ऑल्सो knowledgeable about that scene and about that query. So चलें विदाउट एनी डिले एंड एसिटाइलसिस्टीन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 जो है वो कल भी आप सुनिएगा। और डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस, आपको सर्टिफिकेट इसी अटेंडेंस के बेस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सो मच। इस एक्सटेंड तक आप आ गए हैं तो आई होप इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अक्षर फार्मासिस्ट मैगम। अगर मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आई ऑल्सो डू नीड appreciation, back appreciation for you and motivation for you as your अप्रिसिएशन कि आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हो, क्यूरियस करते हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मेरी वीडियोस को पूरा देखते हो। दैट्स इज अ पर्क फॉर मी कि जो मेरे ऑडियंस है दैट इज अप्रिशिएटिंग मी। तो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस फॉर द सर्टिफिकेट्स। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटाइलसिस्टीन नेम एंड ब्रांड नेम हम पढ़ेंगे, फिर हम उसकी इंडिकेशंस एंड द प्राइमरी यूज करेंगे, उसका मोड ऑफ एक्शन किस तरह वो अपना एंटीडोट इफेक्ट शो करता है, फिर हम देखेंगे उसका स्ट्रेंथ एंड रूट क्या होगा और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। अगर हम एन एसिटाइलसिस्टीन पेशेंट को ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो उसका जो है वो टॉक्सिसिटी क्या होगी, कि किस एक्सटेंट में हमने आगे रुक जाने के बाद पेशेंट को इससे ज्यादा हमने जो है वो एंटीडोट नहीं देना। अब पेशेंट एंटीडोट की पॉइजनिंग स्टार्ट कर रहा है या हमने एंटीडोट ही गलत दे दिया है। देन तो देखते हैं इसका ब्रांड, जो कॉमन ब्रांड है न्यूट्री का, जो इसका ब्रांड है दैट इज NAC एन एसिटाइलसिस्टीन। इसकी 1200 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। तो क्वार्टर टैबलेट्स में भी है, आईवी इंजेक्शन में भी ये अवेलेबल है एन एसिटाइलसिस्टीन, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी आईवी फॉर्मुलेशन अवेलेबल नहीं है। एसिटाडोन इंजेक्शन सोल्यूशन भी इसका अवेलेबल है और उसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल है। इंडिकेशन एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल, एंटीडोट। उनकी टॉक्सिसिटीज में ये यूज होगा जब पेशेंट जो है वो 10 ग्राम या 24 टैबलेट से ज्यादा जो है वो टैबलेट यूज किया जाता है, तो उसकी मैनेजमेंट और उसकी एंटीडोट के लिए हम यूज करेंगे एसिटाइलसिस्टीन एंड एसिटाइलसिस्टीन। उसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड की पॉइजनिंग में भी एन एसिटाइलसिस्टीन वुड बी यूज, बट प्राइमरली ये एसिटामिनोफेन एंड पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी में यूज होता है। अगर हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि कैसे ये एंटीडोट एक्ट करता है, तो रिस्टोर डिप्लीशन ग्लूटाथायोन स्टोर्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट रीनल एंड हेपेटिक फेलियर। जो हमारी एसिटामिनोफेन है वो कन्वर्ट होती है स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स जो कि ग्लूटाथायोन को प्रॉपरली जो है वो कवर अप कर लेती है। अब ग्लूटाथायोन अवेलेबल नहीं है टू
neutralize or as an antioxidant to the glutathione to the metabolite of the acetaminophen and paracetamol. तो ये क्या करता है एन-एसिटाइलसिस्टीन, इट रिस्टोर द डिप्लीटेड ग्लूटाथायोन स्टोर्स, जहां पर हमारे एसिटामिनोफेन जो है वो बाइंड करते हैं, उसके मेटाबोलाइट बाइंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे रीनल को और हमारे हेपेटिक फेलियर से, क्योंकि जब एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग होती है, इट डैमेजेस सबसे पहले हमारे रीनल और हेपेटिक सिस्टम, हमारे किडनीज और हमारे लीवर को उड़ा के रख देता है इसकी पॉइजनिंग। सो इसलिए हम एन-एसिटाइलसिस्टीन यूज करते हैं ताकि हमारे जो रीनल और हेपेटिक है वो साइड जो वो हमारे प्रोटेक्ट हो। फिर आ जाती है इसकी स्ट्रेंथ एंड डोजेस कितनी अवेलेबल है। 10%, 20% इसकी जो आईवी है वो अवेलेबल है। इसके अलावा इसकी टैबलेट्स में 600 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 2500 मिलीग्राम एंड 1200 ग्राम जो है वो मिलीग्राम भी अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कि ये एन-एसिटाइलसिस्टीन की टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल है 1200 मिलीग्राम। मैंने यहाँ पर आपको एंटीडोट जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करती है। इट वुड बी नाउ इजी टू रिमेम्बर, क्योंकि विद टेक्स्ट जब एक पिक्टोरियल फॉर्म में भी जब एंटीडोट की आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है तो दैट मेक्स यू इजी टू रिमेम्बर। सो इसकी जो स्ट्रेंथ एंड रूट है वो आईवी और ओरल दोनों अवेलेबल है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इसका ओरल रूट अवेलेबल है। देन एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें तो इसको हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, तो इसकी स्लो आईवी इन्फ्यूजन देते हैं हम 2 स्टेज पे। हम इसकी डिवाइडेड डोज में हम इसके पहले जो है वो 300 मिलीग्राम पर केजी प्रोवाइड करते हैं एंड देन 400 मिलीग्राम पर केजी आफ्टर एवरी 4 आवर हम पेशेंट को देते हैं टू प्रोटेक्ट द पेशेंट रीनल एंड हेपेटिक फंक्शंस। उसके अलावा अगले 16 घंटे में हम पेशेंट को 100 मिलीग्राम पर केजी को देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, 2 से 3 स्टेजेस में हमने इसकी आईवी इन्फ्यूजन जो है वो डिवाइडेड कर दी ऑन द बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द पेशेंट, ताकि पेशेंट जो है वो अचानक ही उसके अंदर एन एसिटाइलसिस्टीन की भी पॉइजनिंग ना हो जाए, क्योंकि जो एन एसिटाइलसिस्टीन है इट कैन कॉज कफिंग, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, रनी नोज, कामिनेस एंड द चेस्ट टाइटनेस। सो पेशेंट को इसलिए हमने स्लो आईवी इन्फ्यूजन देनी है ताकि जो एडवर्स इफेक्ट एन एसिटाइलसिस्टीन के हैं उनको भी हम प्रिवेंट कर सकें। आगे आ जाती है नाइट्राइजोन। ये इसकी जो ब्रांड्स हैं, नेक्स्ट जेन 50 मिलीग्राम पर ml, वेटनरी यूज के अलावा एज एंटीडोट भी यूज हो सकता है नैल्ट्रेक्सोन। मोस्टली वेटनरी यूज में भी इस्तेमाल होता है, बट इन केस ऑफ द अल्कोहल डिपेंडेंस एंड द अल्कोहल पॉइजनिंग में भी ये यूज होता है। इसकी जो ब्रांड्स हैं नेक्स्टजेन, वेविट्रॉल, इसकी टैबलेट, इसकी एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट और इसकी इंजेक्शन जो है वो दोनों अवेलेबल हैं। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट कम्पीट्स फॉर ओपियोइड रिसेप्टर्स एंड डिस्प्लेसेस ओपियोइड ड्रग्स फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स एज रिवर्स देयर इफेक्ट। इसको हम नैलोक्सोन भी कहते हैं। इसकी आईवी भी अवेलेबल है। नैल्ट्रेक्सोन अलग चीज है, बट सम एक्सटेंट इट्स आल्सो सेम, एंड नैलोक्सोन इट्स समहाउ डिफरेंट थिंग, बट सम एक्सटेंट इनके जो मोड ऑफ एक्शन और इनकी जो एक्शन है वो तकरीबन सेम सेम ही है। तो नैल्ट्रेक्सोन और नैलोक्सोन को इसलिए मैंने अलग अलग किया है। स्ट्रेंथ एंड रूट की बात करें तो 50 मिलीग्राम पर ml, जैसे ये इसमें जो मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा ये, और 300 मिलीग्राम भी इसकी 380 मिलीग्राम भी अवेलेबल है। इट कैन बी गिवन थ्रू ओरल रूट एंड आईएम। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 50 मिलीग्राम ओरली वंस अ डे फॉर 12 वीक्स, वंस अ मंथ हम इसको यूज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ द अल्कोहल डिपेंडेंस, पेशेंट अल्कोहल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, उसकी डिपेंडेंस को हमने छुपाने के लिए नाइट्रैक्सोन की टैबलेट्स को 1 मंथ तक देंगे। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो उसको नोजिया, हेडेक, डिजीनेस, एंजाइटी, टायर्डनेस एंड ट्रबल इन स्लीपिंग कर सकती है। आगे आ जाती है हमारे पास फिजियोस्टिगमीन। फिजियोस्टिगमीन जैसे आपके पास ये इस टेम्परेचर फॉर्म में अवेलेबल है। फिजियोस्टिगमीन सैलिसाइक्लेट इंजेक्शन 1 मिलीग्राम पर ml। तो आगे इसकी सारी ये लेबल के ऊपर बताया हुआ है। इसकी जो ब्रांड है दैट इज एट्रिलियम एंड एंटीरिलियम। हर ग्लोबली इसके डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इंजेक्शन में अवेलेबल होता है। इसकी जो इंडिकेशन इन द प्राइमरी यूज है, इट इज फॉर द एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम, एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग, कोई भी एंटीकोलिनर्जिक हो सकता है, कोई भी कार्बामेट या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी, और इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं लाइक धतूरा, इसकी पॉइजनिंग में भी हम फिजियोस्टिगमीन यूज करते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो inhibit the acetylcholinesterase use, the enzyme responsible for the breakdown of the use of the acetylcholine. फिजिस्टिगमीन की अगर हम बात करें तो इसका रूट बात करें तो इट्स गिवन आइदर आईवी और आईएम। 1 मिलीग्राम पर एमएल की जो है वो आईवी अवेलेबल है, और अगर हम आईएम की बात करें तो 10 मिलीग्राम इसकी अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 0.5 से 1 मिलीग्राम आईवी और आईवी देती है स्लो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन।
इससे हम नॉट मोर देन 1 मिलीग्राम पर मिनट नहीं दे सकते। इसका भी हमने एक स्पेसिफिक जो है वो ड्रॉप रेट मेंटेन करना होता है। रिपीट डॉट एट इंटरवल ऑफ 10 to 30 minutes if desired the patient not response। अगर पेशेंट को अभी लगता है अभी भी टॉक्सिसिटी कंडीशन में है तो पेशेंट को 30 मिनट के बाद हम एक और इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, meiosis, salivation, sweating, lacrimation, dyspnea, and bronchospasm. Thank you so much for the फर्स्ट सेशन। यहाँ पे हमारा जो वेबिनार सीरीज का जो पार्ट 1 है, डे 1, वो कंप्लीट होता है। आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। Please don't forget to mark your attendance in the comment section. The question is pinned in the comment section. And do appreciate me by subscribing to my channel Akshay Pharmacist Mariam, and do follow my page Akshay Pharmacist Mariam on the Facebook and Instagram also. And you can also join my WhatsApp pharmacist community group. The link is in the description. Thank you so much for listening. Kindly subscribe and support my channel Akshay Pharmacist Mariam. And if you are any curious, you can ask in the comment section. If you are in if you have any specific request for the webinar, you can also comment by mentioning my name in the comment section. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.